Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to discuss about The Power of Subconscious Mind, book by Joseph Murphy. And it's very much of an exciting book because it diversifies a human being into how interesting it is to use his, both the power of subconscious mind and also how to secure and keep your conscious mind in a safe place, like how you can do that, or how what is the mechanism behind it, how are the parameters running out, or what you can arc out of that. So firstly, author talks about how we come into contact of many things around, substantially or emotionally or visually or by touch, by feel, and how we release some things like hormones, say happiness, prosperity, how we come into contact. So contact and release, these are the two terms explained by the author. Firstly, second, author tries to convey that we have possessed all we need and we don't need to acquire. Like there is a difference between acquiring all the things. That's where hurriness and worriness start into shaking, right? So we need to understand that we possess more than we are trying to acquire. That is the second understanding given by the author. And after that, author tries to explain about various methods, like in paragraphs. So firstly, the prayer method is being explained, in which author talks about how you can increase the capacity. Like author is startingly explains that how consciously you can assume certain image, certain mental picture, certain plan you have in your mind, to experience the desire basically. And after that, how you can come across your realization, and realization helping you out of increasing your capacity. It will help you to convey whatever the mental image you have developed or whatever the plan you have. So that mental image or plan to your feeling of the state of the subconscious mind, so that will help you to have a form a mental definite mental action. And then the definite mental action will turn out to a definite specific action, because we all know we have some kind of definite mental action, and that turns out to be a definite specific action. Correct. And secondly, author explains about how we dwell on the truths, how we need to correct our erroneous beliefs. So that too happens followingly after the prayer, by uh, praying in this form that I said, that consciously assuming a certain mental image, picture, or plan, whatever you need to experience the desire, that increasing your realization increasing your capacity, and that helping you to convey your mental image plan to the feeling of the state of the subconscious mind. And fortunately, you are having a definite mental action, which is proceedingly helping you to take certain specific action, right? So after that, you dwell on the truths, the fear get dissolved, and dissolving your fear helps you to correct your erroneous beliefs, whatever you have, you know shadowed beliefs of this whole world, और जो भी हमारे irrational beliefs होते हैं हमारे मन में, कुछ भी आड़े टेढ़े विचार होते हैं, erroneous beliefs बोलते हैं उसके हम, है ना? नॉट यूनिवर्सली अप्रूव्ड, यू कैन से। सो वो काइंड ऑफ जो है, हमें इरोनियस बिलीफ्स करेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे ही हमारा डिजॉल्व हो जाता है फियर, एंड वी ड्वेलिंग ऑन द ट्रूथ्स जो है वो फॉलोइंगली डिजॉल्व करता है फियर, बिकॉज वी ट्रैप सर्टेन ट्रूथ्स नो। ऐसे कुछ कुछ ट्रूथ्स हमको दिख जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आ जाती है रियली यूनिवर्सली, है ना, वाइल परफॉर्मिंग। सो तब हम जो है वो ट्रूथ्स जो है कैप्चर करने के बाद हमारा फियर डिजॉल्व हो जाता है। फियर डिजॉल्व होने के बाद हम हमारे इरोनियस बिलीफ्स जो है, आड़े टेढ़े गलत, है ना, वो सब बिलीफ्स जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थैंक्स गिविंग बहुत लोगों को आता नहीं है, बिकॉज थैंक्स गिविंग इज काइंड ऑफ अ ब्रेक, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रेक। सो ब्रेक लेना है, एंड आफ्टर ब्रेक यू कैन देन गिव ए, यू कैन गो ऑफ द हार्ट, राइट? जो भी तुमने टास्क किया है एक आधा, जो भी तुम परफॉर्म करना चाह रहे थे, तो वो टास्क करने के बाद, वो हार्ड टास्क करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, ऑफ द हार्ट जाना है, राइट? बाय गिविंग ए थैंक्स गिविंग। एंड नेक्स्ट जो है आपको, नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ द प्रेयर हो गया, फिर वही जो प्लान था, जो तुम्हारा आइडिया था, जो तुम्हारा टास्क था करना था नेक्स्ट, तब तब के इंस्टेंस के लिए तुम ब्रेक ले सकते हो, राइट? गोइंग ऑफ द हार्ट बाय गिविंग ए थैंक्स गिविंग। सो ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग ब्रेक लेना कभी कभी हमें भी प्री डिफाइंड नहीं होते ब्रेक्स, राइट? those are tricks given by certain parameters in any type, any in all types of departments of your life.
सो ब्रेक्स जो है तो वो कभी प्री डिफाइंड नहीं होते, दैट इज द थिंग। सो वी हैव टू गो ऑफ द हार्ट बाई गिविंग ए थैंक्स गिविंग, एंड जो है हमें नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ द प्रेयर के लिए वेट करना, करेक्ट। उसके बाद ऑथर ने बहुत अच्छे से इन मेथड भी बताई गई है। इन मेथड में क्या है कि उसमें फर्स्टली ऑथर ये कहता है कि इनफर नो अपोनेंट, कोई भी अपोनेंट नहीं रखना है, राइट। डूइंग एनी टास्क, कोई काम कर रहे हो, कोई चैलेंज ले रहे हो खुद के लिए, कोई काम कर रहे हो, सो कोई अपोनेंट नहीं रखना है, इनफर नो अपोनेंट। इमेजिनेशन को जो है मध्यम रखना है। और दूसरा जो है हमें एक चीज़ और एक बोला कि नो विल पावर, दैट इज विल पावर नहीं रखना है, करेक्ट। बिकॉज विल पावर एज ए पैरामीटर अगर देखते हैं हम तो वरीनेस आती है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा हरी हरी आता है, एंड वी कम इन टू दैट फ्लाइट फाइट मोड और समथिंग लाइक दैट। सो इसके लिए ऑथर ने नो विल पावर का इजहार किया है, ओके, इस पैसेज में। एंड उसके बाद इस पैसेज में क्लियरली बोला है कि यू डोंट गो विद द डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स में मत जाओ, ज़्यादा मीन्स में मत जाओ कि काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। और पूरी तरह से एंड रिजल्ट के साथ जाओ, क्योंकि गो विद द फीलिंग ऑफ द सोल्यूशन। यार मतलब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, गो विद द फीलिंग ऑफ द सोल्यूशन। और उस तरह से आप जो है समवेयर गेट द फ्रीडम, जैसे कहा गया, गेट टू द फ्रीडम, राइट। और या फिर गेट टू द एंड कह सकते हैं हम लोग, राइट, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना, इजीली डन, ऐसे वाला मेथड। सो गेट टू द फ्रीडम, गेट टू द एंड रिजल्ट, राइट। और सेकेंडली इसमें यह भी कहा गया है कि कैसे जाना है, मतलब एग्जैक्टली, है ना, कि क्या रूट यूज़ करेंगे, राइट, थोड़ा सा मतलब परसिस्ट करने के लिए, राइट। बिकॉज कोई भी टास्क हम डिसाइड करते करने के लिए तो परसिस्ट करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना, उसमें बहुत टाइम लगता है, करेक्ट, बहुत टाइम लगता है, ईजिली नहीं होता। So you can be simple, you can be childlike, and you can have a miracle-making faith, right? And that how you can persist, right? Pictureize the problem first, है ना? And imagine the emotional accompaniment जो होता है of the craving, जो भी तुम्हें अचीव करना है, जो भी तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, जो भी तुम्हें, so go with that emotional accompaniment with that craving, जो craving है तुम्हारे में, उसके emotional accompaniment के साथ जाओ, समझ रहे? सो अगर वो तुम कर पाते हो तो दैट्स योर विन विन मेथड, राइट। हो गया, मतलब तुम यार है, तुम कंटिन्यू कर सकते हो, जज्बा है तुम्हें, राइट। यू हैव परसिस्टेड, फर्स्ट लेवल जो है वो एक इनिशिएट हो जाएगा, एंड यू कैन कंटिन्यू दैट, कंसिस्टेंटली कर सकते हो, राइट। एंड आफ्टर दैट ऑथर जो है मतलब एंड रिजल्ट के बारे में भी थोड़ी चीज़ें कहता है कि वाई सम पीपल डोंट गेट एंड रिजल्ट्स, कुछ लोगों को एंड रिजल्ट्स मिलने में दिक्कत आती है। और उसमें प्राइमरीली दो रीजंस बताए गए हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और टू मच एफर्ट्स करते रहते हैं, राइट। उसमें और चीज़ें डिस्कस की जाएगी, जैसे कि टिल व्हेन जो है वो आर्क नहीं करते, मतलब कब तक करना है टास्क, वर्स कंडीशन होने तक मैं ये करूँगा, ऐसे मन से ठान लेते, एंड दैट्स वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, है ना। टिल व्हेन अपना आर्क करके लेना है, टिल व्हेन जो है वो कभी भी, टिल व्हेन जो है वो कभी भी आर करके लेना है, राइट, मतलब कब तक करना है टास्क, राइट, है ना। वर्स कंडीशन तक करते रहोगे क्या, वो एक चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, डोमिनेट नहीं कर पाते, जो आइडिया है, जो उनका बिलीफ है, वो डोमिनेट नहीं कर पाते, राइट। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डोमिनेशन एंड कोएर्सिवनेस, मतलब जोर ज़बरदस्ती से करवाना, वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती, कभी भी वर्कआउट नहीं करती। डोमिनेट इज द थिंग दैट यू फर्मली बिलीव, राइट, डोमिनेट दैट आइडिया, तब तुम्हारा एक एक बिट तुमको हेल्प करता है तुम्हारे ब्रेन का उस चीज़ को करने के लिए, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, राइट। दूसरी चीज़ ये भी है कि एंटरटेन जो है वो थॉट को करना आना चाहिए खुद के, राइट। जो सजेशंस आएंगे तो उसके हिसाब से आएंगे फिर तुम्हारे, एंड वो थॉट को एंटरटेन करने के लिए तुम उसको खुद का बनाते हो, राइट, एंटरटेनिंग ए थॉट एंड यू आर मेकिंग इट योर ओन, तब जाके यू कैन कंट्रोल योर ऑटो सजेशंस जो है, राइट। जैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे ऑटो सजेशंस पे चलता है, राइट, तुम्हारे नेचर ऑफ ऑटो सजेशंस पे चलता है, तुम्हारे जो जो तुम्हारा गिव रिक्वेस्ट और अटेन कॉपरेशन वाला फॉर्मेट है, राइट, मतलब एक तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए, राइट, तुम्हारे फॉलो करना चाहिए, जो कमांड कर रहे हो उसको सब्जेक्ट टू द कमांड तुम्हारे करना चाहिए, राइट। जब बोलो तो थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए, दैट्स द थिंग कि ऑथर फॉर्मली एक्सप्लेन करता है वाई पीपल गेट फेल्ड, राइट, पीपल फेल क्यों होते हैं, पीपल का जो या फिर कुछ लोगों का जो है कुछ चीज़ें हासिल होने में क्या मोस्टली पैरामीटर्स होते हैं। दूसरी चीज़ मोनेटाइजेशन के बारे में भी चीज़ें कही गई है कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी की गाड़ी देख ली, किसी का घर बंगला देख लिया, किसी की चीज़ें देख ली, तो क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, एनवी नहीं होना है, राइट। बिकॉज वो किस माध्यम से कमा रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तो इट्स पावर ऑफ माइंड जो उसको हेल्प करेगा,
उससे चीज़ों को सबड्यू करेगा, बट वी आर नॉट द वन। क्रिटिसाइज करके इविल एनवी फील करके हम खुद को कॉज बना देते हैं कि हमारे पास वो नहीं है, एंड हमारे पास वो आने में भी दिक्कत होगी। हम वो कॉज बना देते हैं कि हमारे पास वो नहीं है, हमारे हम एनवी हो जाते हैं, कॉज बना देते हैं उसको। राइट, पुअर्टी हो गया, हम उस चीज़ को कॉज बना देते हैं हमारा। राइट, हमको उल्टा ये प्रे करना चाहिए कि उसकी और तरक्की हो, उसका और आगे जाए वो, और उस तरह से हम भी आगे जाए। राइट, सो दैट्स द थिंक कि तुमको वैसे एनर्जीज अगर डाइवर्ट करते हो, वैसे चीज़ें करते हो, तो आप जो है डेफिनेटली डेफिनेटली आपका भी जो है उस डायरेक्शन से तरक्की होगा डेफिनेटली। बट क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, एनवी नहीं होना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो चीज़ें हम करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं या फिर क्रिटिसाइज या फिर एनवी होते हैं, सो वो नहीं करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। दूसरा और एक चीज़ है कि अ, एक एक प्लम्बर का एग्जांपल दिया गया है ऑथर ने एनालॉजी के तौर पे, कि व्हाट वेंट रॉन्ग। राइट, क्या रॉन्ग गया, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाते, है ना। हम सीधी तरह से मिसिंग बोल्ट ढूंढने लग जाते हैं कि व्हाट इज़ मिसिंग ओवर इट, है ना, कि क्या मिसिंग है। राइट, सो व्हाट वेंट रॉन्ग वो ढूंढना है टेक्निकली, बिकॉज समवेयर कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी चीज़ें आड़ी टेढ़ी की, तो हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें हो गई या फिर कोई एक पर्टिकुलर आदत हो गई, तो उसको ब्लेम करने निकले, या फिर हम कोई एक आधी चीज़ गलत कर दी तो हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस चला जाता है, अरे हाँ हमने ये सुबह गलत किया था इसलिए दोपहर में ये गलत हो गया। सो वो नहीं करना है। राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग ढूंढना है, ना कि मिसिंग बॉल्ट। करेक्ट, मिसिंग बॉल ढूंढेंगे तो पकड़े जाएंगे। हमेशा याद रखना, कोई परफेक्ट नहीं होता है, बचपन से कोई परफेक्ट नहीं होता है। जो चीज़ें हैं वो सब ने अपने मेहनत से, अपने प्रैक्टिस से, अपने हार्डवर्क से ही की है, तो ऐसे कोई नहीं है कि बचपन से कोई परफेक्ट है। सो मिसिंग बॉल्ट जो है वो चीज़ें हमें बाद में ढूंढना चाहिए, उसका बहुत कम प्राइस होता है, बट फर्स्ट हमें व्हाट वेंट रॉन्ग ढूंढना है। एंड उस एनालॉजी में ऑथर एक्सप्लेन करता है कि जो एक प्लम्बर था, उसने जो क्या गलत हुआ, उसका चार्जेस $900 $94 लिया, बट 5 सेंट्स सिर्फ मिसिंग बॉल्ट का लिया। और ऐसे क्यों, तो व्हाट वेंट रॉन्ग ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, एंड उसी की से हमें हमारी तरक्की होने वाली है, उसी उसको आइडेंटिफाई करने से ही हमारे चीज़ें हमें समझ में आने वाली। राइट, बिकॉज मिसिंग बोल्ट एक कुछ ऐसा होता है कि हम फिर चेन लूप में फंस जाएंगे। राइट, हम खुश नहीं है इसलिए हमको ऐसा लग रहा है हम खुश नहीं है, तो हम जड़ पे काम नहीं करते, फिर जो रियल चीज़ है, फिर जिसकी वजह से हम उस स्थिति में आए, परिस्थिति में, वो चीज़ के लिए हम फाइट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम जो है और चेज़ करते हैं, है ना, ये मिसिंग है इसलिए ये हो रहा है, अरे ये मिल गया इसलिए ये हो रहा है, ये आड़ा हो गया इसलिए ये हो रहा है। राइट, है ना, तो वो नहीं करना है। सुबह मैंने ये कर दिया था गलत इसलिए आज दोपहर भर ये हो रहा है, या फिर ये गाड़ी चली गई ऐसे इसलिए ऐसे हो रहा है, फिर ना आगे से कोई आदमी ने कुछ बोल दिया इसलिए हो रहा है, बट ऐसे नहीं है। वॉट वेंट रॉन्ग वो हमको ढूंढना है। राइट, फर्स्ट प्लेस में वो एक चीज़ ऑथर ने बहुत अच्छी कही गई है। एंड कुछ लोग जो है वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो इसके लिए दो तीन चीज़ें ऑथर ने बताई है कि कॉन्शियसली वो डिसीजन नहीं लेते। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, फियर जो है वो बहुत रहता है उनमें, बिलीफ जो है वो नहीं रहता है। कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते, बिलीफ नहीं होता है उसमें, और फियर जो है वो रहता है। करेक्ट, सो दैट्स द थिंग कि हमें डिसीजन लेते वक्त भी ये तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो डिसीजन कॉन्शियसली है नहीं है, हम फियर में ले रहे वो डिसीजन, राइट, बिलीफ है कि नहीं है हमारा उस डिसीजन को लेते वक्त। करेक्ट, तो वो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एंड कुछ कुछ लोग जो है बहुत हार्म करते रहते हैं खुद को। राइट, कुछ हर्ट कर रहा है तो भी हार्म करता है, तो वो फुलिशनेस है, इट इज़ अ फुलिशनेस कि अगर वो खुद को हार्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ हर्ट हो रही है तो भी इट इज़ स्ट्रेट फुलिशनेस। बिकॉज बिलीफ जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है ना, बट अगर तुम दोहरा रहे हो वो चीज़, करेक्ट, तो कहना कि चेकआउट करने की ज़रूरत है। राइट, इट इज़ फुलिश टू हार्म दैट्स हर्टिंग यू। ओके, सो इसी तरीके से ऑथर ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबकॉन्शियस माइंड का जो हमारा कैसे चलता है, क्या इन्वॉल्व है उसमें, राइट, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो पहली चीज़ ये जानना चाहिए कि इसमें कंपैरिजन नहीं चलता।
उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं चलता है, इसमें जैसे कि हम दूरा भाव करते हैं, है ना, कंपैरिजन, तो सबके मन में ये एक इमोशंस और मेमोरी का एक जो पैकेट होता है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, और उसको कंट्रोल करना इट्स नॉट आवर बिजनेस, रिमेंबर इट, राइट। कभी किधर कुछ हो गया, कुछ बोल दिया, बट उसको उसका पश्चाताप करना चाहिए, उसका सोचना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसे, क्या हुआ, मेरे से कुछ गलती हुआ, ऐसे हो गया। नॉर्मली सबकॉन्शियस माइंड को चीज़ें नहीं है उसके पास, राइट, उसके पास चीज़ें नहीं, इट डज नॉट हैव थिंग्स नॉट टू प्रूव फॉर इट सेल्फ या फिर टू थिंक फॉर इट सेल्फ, खुद के लिए सोचने के लिए चीज़ें नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे नोटिस किया गया है बुक में कि सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट हैव थिंक फॉर इट सेल्फ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। बस फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो फिर हमने दो पार्ट्स में जैसे डिस्कस किया है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ memories, right, and it's none of our business to control it, remember that, okay, you cannot have hold on it, or you cannot have all your involuntary actions controlled, right? There is no one of a person किसी ने ऐसे कल किया होगा सब कुछ, है ना, involuntary actions ऐसे कभी नहीं होता, करेक्ट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इट डज नॉट हैव थिंग्स फॉर इट सेल्फ, टू थिंक फॉर इट सेल्फ, थिंग्स नहीं है, चीज़ें नहीं है उसके पास खुद के लिए थिंक करने की, ये सब कॉन्शियस माइंड। फिर हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग दैट, है ना, विच इज़ नॉट आवर बिजनेस, हम जो है कॉन्शियस माइंड को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट इज इट्स योर चीफ, यू नीड टू रिमेंबर दैट कॉन्शियस माइंड इज योर चीफ, राइट, एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर द फॉल्स इंप्रेशन। जो फॉल्स इंप्रेशन होते हैं हमारे, तो उनसे हमें सेव करना है सबकॉन्शियस माइंड को, राइट, विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड क्या है, चीफ है हमारे माइंड का, एंड ऑल्सो हाउ वी कैन डू दैट इज कीपिंग इट बिजी, और कॉन्शियस माइंड को बिजी रख के, और इसे बिजी कैसे रखेंगे, इसको क्या करेंगे, हम बेस्ट देना है, हमें बेस्ट ऑफ एवरीथिंग देना है, ऐसे ध्यान में लेना, राइट, गिविंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ लवली, ट्रू, जस्ट एंड गुडविल। ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम जो है कहीं ना कहीं इनके बेसिस पे हम करेंगे वो चीज़, करेक्ट, इनके बेसिस पे हम जो है बिजी रखेंगे उसको, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रिएक्ट फॉर गुड एंड बैड आइडियाज, ओके, इट्स अलाइक फॉर बोथ ऑफ देम, यू नीड टू नो दैट कि अलाइक है दोनों के लिए, यू कैन नॉट हैव सेम थिंग, सेम रिएक्शन फॉर बोथ ऑफ देम, you need to understand that how great you may be, how small may be, you need to understand it is not same for good and bad ideas, okay। conscious mind जो है हमारा, it is alike for both of them, good and bad things, good and bad ideas, mostly good and bad ideas। so after that हम क्या कर सकते हैं, एज ए होल अगर प्रोटेक्टफुल रहना है, पीसफुल रहना है, सो हम क्या कर सकते हैं, चार टर्म्स बताए गए आपने, इफ यू आर बिजी इन्वॉल्व बिल्डिंग समथिंग ऑन दिस फोर थिंग्स, दैट इज पर्पस, पीस, हारमनी एंड गुडविल। सो इन चार चीज़ों पे हम काम करते हैं तो वी आर सेफ इन दिस, राइट, सेफ साइड पे हम लोग हो बेसिकली, करेक्ट। ये एक चीज़ हो गई। अभी दूसरी एक चीज़ है कि जो हमारे मदर थॉट है वो भी प्री डिसाइडेड होते हैं कि किस चीज़ पे काम करेंगे, किस चीज़ के अंडरलाइन होते हैं ये, एंड दैट्स ऑल्सो इट इज मैंशनड इन द बुक वेरी क्लियरली, दैट इज होलसमनेस हो गया, राइट, एंड हारमोनी हो गया, और हम कह सकते हैं परफेक्ट हेल्थ हो गया। दिस आर थ्री थिंग्स, दिस आर थ्री थिंग्स जिससे हम रील प्रोजेक्शन जो है, जैसे कि हमारा एक टास्क हो गया, दूसरा करना है, दूसरा टास्क हो गया, तीसरा करना है, सो हम जो है ये तीनों टास्क ये कैसे कर सकते हैं, हम ये तीनों टास्क जो है इन इन तीन चीज़ों की, तीन चीज़ें जो तीन थॉट जो है उनके बेसिस पे हम ऐसे सोच सकते हैं कि व्हाई वी वांट टू अल्टर द टास्क, क्यों मेरे को उठना है ना, मैं बैठा हूँ इतने देर से, तो क्यों मेरे को उठना है, मेरे को ये चीज़ करनी है ना, क्यों मुझे ये टास्क अभी बंद करना है, दूसरा करना है, राइट। सो व्हाई वी नीड टू परफॉर्म दैट, व्हाई वी नीड टू डू दैट थिंग। सो वो हम चीज़ें क्यों करनी चाहिए कि होलसमनेस हो गया, हारमनी हो गई, परफेक्ट हेल्थ हो गया, दिस आर द पैरामीटर्स ऑफ योर रील प्रोजेक्शन। जो तुम काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एक एक टास्क कर रहे हो, दूसरी चीज़ कर रहे हो, सो ये सब चीज़ें जो है
तुम्हें एट द एंड इन इन 3 थॉट्स के बेसिस पे ही करनी है, राइट? सो ये 3 थॉट्स अगर अपने लक्ष्य याद रखते हैं या फिर चीज़ें जो है इनके हिसाब से चला दे, सो वी कैन प्रोजेक्ट आवर टास्क इन आवर माइंड एंड उसके हिसाब से हम टास्क करते जा सकते एंड हम फॉलोइंगली जो है फॉलोअर्स भी ले सकते हैं, करेक्ट? कि मेरा इस थॉट पे क्या लेवल है अभी, राइट? होलसमनेस पे क्या है, राइट? एंड होलसमनेस यू कैन लुक एज ए अवेयरनेस थिंग ऑल्सो, जो कि हम दो अवेयरनेस ले सकते हैं, एक पेरिफेरल हो गया और एक फोकस्ड अवेयरनेस हो गया। सो फोकस्ड अवेयरनेस बेसिकली जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो हमारे टास्क है, जो हमारे डिटेल्स है, उस पर ध्यान देने वाला अवेयरनेस हो गया। एंड सेकेंड हो गया कि हमारा पेरिफेरल अवेयरनेस इज नथिंग बट बीइंग, जो है हमारा, है ना, वेल बीइंग हो गया, फिर बीइंग जो है वो हो गया। और जो हमारा ये हो गया जैसे कि हम एक्सपीरियंस्ड कुछ चीज़ें जो है हमारी, है ना, तो वो चीज़ों पे चिलना, राइट? सो वो चीज़ें हो गई पेरिफेरल अवेयरनेस पे, राइट? सो दोज आर टू थिंग्स कॉम्बाइंडली मेकिंग योर होलसमनेस। एंड उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ एक देख सकते हैं, वो है मदर थॉट, जो मैंने पहले कहा था। सो मदर थॉट इज डिपेंडेंट ऑन योर हेल्थ, वेलबींग एंड रिलैक्सेशन। ये हमें माइंड में रखना है, करेक्ट? बिकॉज हेल्थ, वेलबींग एंड रिलैक्सेशन, दीज आर थ्री टर्म्स विच यू आर बॉर्न विथ। योर मदर थॉट ही है तुम्हारा, करेक्ट? बस तुम रिलैक्सेशन के बगैर तुम हो नहीं सकते। एंड रिलैक्सेशन इज नॉट अबाउट लाइंग ऑन योर बेड और जस्ट सिटिंग, जस्ट डूइंग, इट कैन बी एनी थिंग। डूइंग एनी अदर टास्क कैन बी रिलैक्सेशन, ओके? डोंट रिडिफाइन इट, फील इट एज यू विश। एंड उसको जो है हम अगर वेलबींग को देखते हैं, सो वेलबींग इज ऑल्सो लाइक if you are somewhere, good at your etiquettes, carry on it, you know, socially good, so carry on. It's a fact of just your how well your being is, right? How you are present in your living. And secondly हो गया health is also like more, it was both mental, physical, है ना, your personal, how your confidence you are building, है ना, how your confidence is holding you. सो वो सब चीज़ें होगी इसमें, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कॉन्फिडेंस कैसे होल्ड कर रहे हो, एंड ऑल्सो कैसे कंजर्वेटिवली तुम परफॉर्म कर रहे हो। सो दैट्स ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व इन मदर थॉट, राइट? हेल्थ, वेल बींग, मदर थॉट में ये याद रखना, बिकॉज मदर थॉट सिमिलर फॉर एवरी वन, हर एक के मदर थॉट जो है वो सिमिलर ही होते हैं, याद रखना, राइट? बिकॉज इट्स अ बॉर्न थॉट, है ना, बॉर्न से हम रिलैक्सेशन कैसे करते आ रहे, हम जो है वेलबींग पे ध्यान देते आ रहे, हम जो है हेल्थ पे ध्यान देते आ रहे। सो वो सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद ऑथर ऑल्सो डिस्कस्ड फास्टली अपॉन रिलेशनशिप्स, राइट? रिलेशनशिप्स जो है वो दो चीज़ों की वजह से चलते हैं, एंड दो चीज़ें कौन सी है वो है, एक है पावर ऑफ माइंड, और दूसरा जो है वो है तुम्हारा फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। सो क्या होता है कि कभी कभी हम जो है वन ऑन वन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर ऑल इन वन रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, राइट? कोई मीडिया चला रहा है, कोई कोई मैरिजेस इन्वॉल्व है। सो वो सब चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं कि हम जो है फंक्शनिंग जो है माइंड का वो भूल जाते हैं कभी कभी। एंड सेकेंडली जो है हम पावर ऑफ माइंड जो है वो कैसे ख्याल करता है लोगों का, राइट? उनका उनका ख्याल कैसे रखा जाता है उनके लिए, तो वो हम चीज़ें थोड़ा सा भूल जाते हैं, फिर कभी कभी हम पर्सनली लेते हैं कुछ चीज़ें। सो वो सब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, वो सब चीज़ें जो है उनका ख्याल उनका पावर ऑफ माइंड लेता है, करेक्ट? वी नीड टू नॉट कंपेयर, वी नीड टू नॉट कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप, author talked about a lady whose marriage was going wrong. So somewhere some highlighting parameters were addressed to her कि आप ये सब देखना चाहिए, राइट? कि आप कितना सिक्योर फील करते हो, है ना, आप वो कितना मतलब वाइटलिटी हो, एंथुसियास्टिक हो उस रिलेशनशिप में, कितने सिंसियर हो, कितने जेन्यूननेस है आप में, करेक्ट? सो बैक ऑफ पीपल भी कैसे रहते हो आप। सो दीज आर द थिंग्स, राइट? वन इन ऑल और वन ऑन वन रिलेशनशिप्स बोथ, करेक्ट? पावर ऑफ माइंड एंड फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। फंक्शनिंग ऑफ द माइंड भूलना नहीं है, करेक्ट? एंड पावर ऑफ माइंड भी भूलना नहीं है, बस ख्याल रखता है, राइट? पावर ऑफ माइंड उस उन आदमियों का ख्याल रखता है, करेक्ट? उसके बाद ऑथर जो है एक अ, एक जो मेमोरी होती है हमारी कोई, राइट?
तो उसको इरेज़ करने में हम जो है कभी-कभी टाइम लगा देते हैं, हम जो है कभी-कभी उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? सो उसके बारे में एक एनालॉजी जो है वो ऑथर ने कही है। एक हॉर्स था, उसको एक जगह पे बाँधा जाता था हमेशा, तो वो क्या करता था उसी जगह पे जाके खड़ा रहता था और उसी जगह पे जो है बहुत देर तक खड़ा रहता था, उधर ही रहता था। सो उसकी वो मेमोरी हो गई, 25 साल से उसकी वो मेमोरी हो गई कि उधर ही जाना है, उधर ही खड़ा रहना है, उधर ही है ना बाँधते रहते थे उसको पहले तो, इसके लिए। So author talking about this stump memory, like how you can do this. So you have to destroy that memory. You need to remember this. You need to destroy that memory by whatever your uh, उसके आजू बाजू जो थिंग्स है जो तुम्हें रिजिड रख रही है, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट उस स्टम्प मेमोरी को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है पहले तो, राइट? बिकॉज वो तुम्हें आगे नहीं जाने दे रही, करेक्ट? एंड उसकी वजह से तुम्हारी ग्रोथ रुकी हुई है एंड यू आर फॉलिंग डाउन इन योर कम्फर्ट जोन। तो वो एक चीज़ है कि कुछ भी चीज़ से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है वो करके उसके फॉलोअप्स लेके, है ना? एंड रेगुलरली रेगुलरली वो करके। ऑल्सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक रूल है कि आप जो है अगर न्यू पैटर्न्स जो है उसके लिए वे बना रहे हो, करेक्ट? सो अगर न्यू पैटर्न्स का वे बना रहे हो तो उसमें जो है यू कैन यू कैन डेफिनेटली कम अक्रॉस दिस थिंग्स ईजीली। सो उसमें भी ये है कि कोहेसिवनेस नहीं करना है, ओके? डोंट फोर्सफुली और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करना है, नहीं तो फिर ब्रेक डाउन होगा, राइट? सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक रूल है ये, यू कैन थिंक इट एज ए बिट ऑफ बोर्ड, मदर बोर्ड जैसे होता है वैसे थिंक कर सकते हो एंड एक न्यू पैटर्न्स बन रहे हैं, करेक्ट? सो उसके हिसाब से तुम जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी पे वर्क कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन योर न्यूरोप्लास्टिसिटी, करेक्ट? ये एक हो गया। सेकेंडली, रिलेशनशिप्स की जैसे कि बात होती है तो अभी भी जैसे कि हम जो है चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो हमें एक ख्याल नहीं आता कि यार 3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। और 3 फैक्टर्स कौन से हैं कि एक है एंटाइटलमेंट, राइट? एंटाइटल कैसे करते हैं उस चीज़ को? एंटाइटलमेंट इज़ समथिंग लाइक कॉलिंग समवन बाय सम नेम और सम, सो एंटाइटलमेंट कैसे करते हो कोई भी चीज़ हो गई, है ना? हैंडल करते हो बहुत याद आती है ये चीज़, बिकॉज एंटाइटलिटी एंटाइटिंग इज एवरीथिंग, राइट? दूसरी चीज़ है कि यार जनरलाइज नहीं करना। इफ़ यू आर इन वन ऑन वन रिलेशनशिप उसको भी जनरलाइज नहीं करना है। इफ़ यू आर ऑल इन वन रिलेशनशिप वन एंड ऑल, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोई भी चीज़ सर्कल हो गया, सर जनरलाइज नहीं करना, करेक्ट? वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली होगा थर्डली होगा मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन जो है वो, यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार यू हैव टू यू आर द पार्टिसिपेंट, यू आर नॉट द विक्टिम। सो वो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज़ पार्ट वन गाइस ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक रिव्यू पार्ट वन। सो इसमें हमने क्या क्या देखा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के पैरामीटर्स देखे जिस पे डिपेंड रहते हैं, नेचर पे कैसे डिपेंड रहता है सबकॉन्शियस माइंड, एंजेंडर्ड कैसे होता है, राइट? नेचर पे डिपेंड करता है, याद रखना सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड जो है वो सेंस पे डिपेंड करता है। नेचर यानी यू कैन सी योर सेल्फ एज फियर, एंजाइटी, वरी में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और वो सेंस कैसे करते हैं कॉन्शियस माइंड, पैनिकनेस, डिस्पेयर, और तुम्हारा जो है फोरबोडिंग। सो उसमें जो है तुम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फोरवर्डिंग नहीं होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉन्सेप्ट से तो बहुत सारी चीज़ें एक बार के आ गई है ना, तो फोरवर्डिंग हो जाती है उसमें, और वरीनेस की वजह से भी फोरवर्डिंग होता है, याद रखना। एनसाइटी की वजह से क्या होता है, डिस्पेयर होता है, याद रखना। हमारे पास वो चीज़ें होती है तो भी हमें एनसाइटी में क्या करते हैं, समझता नहीं, वी डोंट पेयर अप विद दोस थिंग्स। डिस्पेयर आता है बहुत ज़्यादा एनसाइटी अगर रहती है तो कोई भी चीज़ की। फर्स्ट थिंग है हमारा फर्स्ट थिंग है हमारा फियर। फियर फियर की वजह से क्या होता है, फियर की वजह से पैनिकनेस आता है, याद रखना। इफ़ यू आर फियर्ड ऑफ समथिंग, इफ़ यू आर फियर ऑफ समथिंग हैपनिंग, समथिंग्स, सो यू गेट पैनिक्ड, पैनिकनेस का सेंस आता है, याद रखना कॉन्शियस माइंड को। सो ये सब पैरामीटर्स यू कैन आर्क योर सेल्फ ऑन दिस, है ना? एंड यू कैन कैरी आउट थिंग्स इन दिस वे, it will definitely work, okay? And if you find some more fiction points or if you find this discussion interesting, please uh, try to let me know in the comment section.
And also author lastly has told one thing very much important, that is पावर, जो सबकॉन्शियस माइंड उसको हम कंपेनियनशिप बना सकते हैं, कंपेनियन बना सकते हैं फॉर आर लाइफ। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपेनियन बना सकते हैं, सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं काइंडली बाय स्कैरसिटी माइंडसेट को चेंज करके, है ना। बिकॉज वी गेट टू थिंक दैट वी हैव अ प्लेंटी एंड सम जो है चीज़ें हमारे पास पैर में भी है, तब जाके हमारी सुधारना होगी। करेक्ट। जो वी हैव प्लेंटी एंड वी हैव सम चीज़ें टू स्पेयर टू। एंड दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को सब काम जमता है, मैनेज भी करना आता है, बट दे डोंट सक्सीड। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन फंक्शनिंग ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड। सेकेंडली वो क्रिएटिविटी कम गिरती है एंड दे आर लेस एम्बिशियस। एम्बिशन नहीं होता है कुछ अचीव करने का, राइट। कोई पॉइंट गोल बना के नहीं रखते, लाइक इकिगाई हो गया है फिर, है ना। सो गोल ना होने की वजह से, फिर एम्बिशियस ना होने की वजह से दे डोंट सक्सीड, राइट। और जो चीज़ें हासिल करनी, फिर ग्रोथ हो गया, फिर अपग्रेड हो गया, है ना। सो वो थिंग्स एंड यू नीड टू रिमेंबर गाइस, बट ओके, अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड का नेचर से बहुत नाता होता है, करेक्ट। फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, वरीनेस हो गया, है ना। सो फियर की वजह से हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सेंस क्या करता है, इट सेंस योर पैनिकनेस। फर्स्टली याद रखना, फियर नहीं लाना है इसलिए ज़्यादा याद रखना। फिर दूसरा है हमारा जो एंजाइटी है, उसकी वजह से डिस्पेयर आता है। वी डोंट पेयर अप विथ थिंग्स, करेक्ट। पेयर नहीं कर पाते, है ना। कुछ चीज़ें हमारी पहचान की है, कुछ चीज़ें हमारी पुरानी पहचान की है, कुछ चीज़ें हमारी रिलेटेड है। सो वो जब हम पेयर नहीं कर पाते एनजाइटी की वजह से, एनजाइटी रहती है ना कुछ, ये होना चाहिए, ये हो गया, ये हो रहा है ना, उसकी वजह से एनजाइटी। एंड दिस थर्ड थिंग इज फियर, सॉरी व्हाट यू कैन से, वरीनेस। वरीनेस की वजह से व्हाट यू थिंक कि फोरबोर्डिंग कुछ ज़्यादा होता है। वरी अगर कोई चीज़ का है ना कि ये चीज़ होगा, ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़, वरीनेस का भी फोरबोर्डिंग होता है। बहुत सारे थॉट जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आते हैं, तो उसकी वजह से हमारा फोरबोर्डिंग होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, नेचर को भी कंट्रोल करना है, राइट, हमारा हो गया। एंड ऑल्सो आर सेंस जो है वो करस्पॉन्डिंग हमें कंट्रोल करना है। सो हाउ यू कैन वर्क ऑन योर एंड रिजल्ट्स, पहले तो एंटरटेन सीखना हमारे थॉट को, राइट। एंटरटेन करते हमें हम कोई थॉट को और उसको हमारा बना देते, तो उस टाइम से हमारा जो है कहीं ना कहीं ऑटो सजेशंस हमारे ऊपर से हमारे से आएंगे, राइट। और कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट जो भेजेंगे हम, राइट, जो हम जो रिक्वेस्ट करेंगे उससे हम कॉपरेशन अटेंड कर पाएंगे। और चीज़ें जैसे कि नेगेटिव सजेशंस बहुत कम हो जाएंगे, राइट, नेगेटिव ऑटो सजेशंस। एंड एंटरटेन के बाद डोमिनेशन भी याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेशन जो है आइडिया, बिलीफ का, थॉट का, है ना। फिर हमारे बिट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो हमें हेल्प करने के लिए लग जाएगा डोमिनेशन करने से। डोमिनेशन ऑफ एन आइडिया और डोमिनेशन ऑफ एन बिलीफ जो भी है हमारा, राइट, उसका जो है हमें डोमिनेट करना आना चाहिए, ओके। एंड सेकेंडली, आफ्टर गोइंग विद एंटरटेनिंग योर ओन थॉट, आफ्टर गोइंग विद डोमिनेशन ऑफ योर आइडिया और बिलीफ, यू नीड टू नो दैट ये सब चीज़ें करने के बाद भी हम जो है 5 टाइम्स दिन में डेली जो है हमें याद करना चाहिए, एज ए प्रेयर हो गया, कि आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड आई वांट टू बिकम प्रॉस्पेरस। 5 बार अगर कर दो दिन में, सो आपको एक रिमाइंडर जाएगा, हमेशा एक एक रिमाइंडर जाएगा फॉर इस पाथ से जाना है, इस वे से जाना है ना, फॉर्मेटिवली, करेक्ट। सो वो एक थिंग है। And after all, it's a very much good book to learn, okay. So thank you so much friends for watching this video, and if you like this video, please subscribe to the channel. And if you thought about something else, or if you have related to something, just comment down. We'll meet soon again with the next video. Thank you so much guys, please subscribe to the channel, and we are meeting soon again with the next video.